Hello everyone. Science Plus TV welcomes you once again. Today I have brought a video for my young subscribers, the little scientists who are just at their budding stage and they have started learning science. Okay, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा चैप्टर लेकर आई हूँ insects का. Basically class 4th में ये चैप्टर है. So we will be discussing about the insects. हमारे आसपास बहुत सारे दिखाई देते हैं तो उनके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ. So let insects. कि insects क्या होते हैं? Let's see. We have always seen some little creatures flying in our houses or in any areas. You can find them like house fleas, mosquitoes, butterflies, etc. ये जो उड़ने वाले छोटे छोटे आपको दिखाई देते हैं creatures, these are known to be insects. अभी देखिए हमारी अर्थ के ऊपर वी हैव मोर देन अ मिलियन काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स. बहुत तरह के इंसेक्ट्स हैं. इनफैक्ट इंसेक्ट्स का जो ग्रुप है एनिमल्स में वो सबसे लार्जेस्ट है अर्थ पे. यानी कि द ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स इज द लार्जेस्ट ग्रुप of animals on the earth. There are different types of insects जिनके sizes अलग अलग हैं, shape हैं, colors हैं. देखे होंगे आपने butterflies को देखा होगा. You must have seen, you may have seen different types of butterflies who are very beautiful. Okay. अभी देखिए उनकी बॉडी के अंदर बोन्स नहीं होते हैं. समटाइम्स इफ यू जस्ट किल अ मस्कीटो, आप गलती से किसी मच्छर को मार देते हैं या किसी हाउस फ्ली को मार देते हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि उनकी बॉडी में तो बोन्स ही नहीं होते हैं जैसे हमारी बॉडी में होते हैं. हार्ड बोन्स वी हैव, राइट? सो दैट इज in that case their body has a special type of skeleton जो उनकी बॉडी के बाहर होता है. ये एक स्पेशल मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं काइटिन. ठीक है. उस काइटिन का बना हुआ एक एक्सोस्केलेटन होता है. एक्सोस्केलेटन जो उनकी बॉडी के बाहर होता है which gives shape to their body. Okay. Every insect, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है that they have 3 pairs of legs and 2 pairs of membranous wings to fly. ठीक है. इन सभी के 3 pairs of legs होते हैं and they have 2 pairs of membranous wings. Then कुछ insects क्या होते हैं? They visit the flowers, okay, and help in the pollination process. Pollination तो पता ही है आपको. When pollen grains transfer from one flower to another flower of the same kind, the process is called pollination. Pollination अपने आप तो नहीं होता है ना. There are different ways. तो insects are one of those ways. Pollen grains जो हैं वो insects की body और उनके feet पे attach हो जाते हैं and then they are transferred to the another places. ओके. इनके और भी एग्जांपल्स हैं इंसेक्ट्स के लाइक हनी बी, बम्बल बी, बटरफ्लीज, वैस्प, हाउस फ्लीज एंड मस्कीटोज. गाइस, फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव ब्रॉट यू these pictures. I have a few pictures of these insects like you can see butterfly, grasshopper, bumblebee, fly, housefly, caterpillar, moth. We have ant, Colorado beetle, dragonfly, ladybug, scorpio, spider, mosquito, carus, beetle, and wasp. तो ये सभी क्या है? These are a few other examples of these insects. ये भी आप learn कर सकते हैं for your convenience to be written in the exams. Okay. To the next topic. Moving on to the next topic, we have some useful insects. Let's see. इन सभी insects में से कुछ insect हमारे लिए जो है useful होते हैं while there are others which are harmful for us. तो सबसे पहले हम useful insects के बारे में पढ़ेंगे. The very first one is the honeybee. Okay, honeybees जो होते हैं they build their beehives. Okay, we must know that honeybees build their uh, beehives and collect the nectar from flowers. ठीक है. flowers से insects के पास जो हैं they have sucking kind of mouth parts जिनको proboscis बोलते हैं. आपने पहले भी पढ़ा होगा. So they suck nectar from the flowers and store
दैट नेक्टर इन द कोम्स, हाइव्स के अंदर कोम्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, वहां पे नेक्टर जो है दैट चेंजेस इनटू हनी. हनी इज देन कलेक्टेड एंड स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज. हनी के तो बहुत सारे यूजेस हैं, वी मस्ट नो. वी हैव मेनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ हनी. ओके, और ये बहुत टेस्टी भी होता है, खाने में भी अच्छा लगता है. ओके, moving on to the silk moth. Silk moth is the another useful insect. It grows on mulberry leaves. Mulberry होता है ना शहतूत. Okay, उसके leaves को ये खाता है. The insect releases a liquid. एक लिक्विड अपनी बॉडी से वो सिक्रीट करते हैं, जो हवा के साथ जैसे ही कांटेक्ट में आता है, इट टर्न्स इनटू अ फाइन थ्रेड. ओके, देन दैट थ्रेड इज वीव्ड अराउंड द इंसेक्ट बॉडी टू बिल्ड कोकून. बिल्कुल एक कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है. ओके, विच इज कॉल्ड एज द कोकून. एंड देन सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स. और हम सबको तो पता है दैट सिल्क फाइबर इज वेरी मच फेमस फॉर मेकिंग द सिल्क साड़ीज. It's very popular amongst the ladies. Okay. Then we have the lac insect. Lac insects जो हैं वो banyan trees पे grow करते हैं. They release semi-solid substance from the body called as lac. Lac is used in paints, varnishes, printing ink and for making bangles also. Bangles के बारे में आपने सुना होगा. राजस्थानी bangles होती हैं. Generally they are made up of lac. तो lac हमें एक insect से मिलता है. Okay. Then we have ladybird beetle. लेडी बर्ड बीटल बड़ी ही हमारे लिए यूजफुल है, बिकॉज हमारे जो भी फील्ड में क्रॉप्स होते हैं वहां पे बहुत सारे पेस्ट्स लग जाते हैं. पेस्ट्स आर दी अनवांटेड इंसेक्ट्स, जिनको हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारे फील्ड्स में आए. तो वो क्या करते हैं, अनवांटेड इंसेक्ट्स, वो हमारी फील्ड्स में से जो क्रॉप्स हैं उनको खाना शुरू कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो लेडी बर्ड बीटल वहां हमारी हेल्प करता है. इट ईट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पेस्ट्स दैट आर हार्मफुल टू दी plants. So that was a few facts about the useful insects. Moving on to the next slide, I have some harmful insects. अब देखिए, insects harmful भी हो सकते हैं. We must be very aware of this. First of all, we have disease spreading insects. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे हाउस फ्लीज की. हाउस फ्लीज जो हैं मक्खियां, दे सिट ऑन गार्बेज, और वहां से डिजीज कॉजिंग जर्म्स को फूड आइटम्स पे ले जाती हैं. मक्खियां जो हैं पहले गार्बेज पे बैठती हैं, then they go to the food items. This way they cause the spread of many dangerous diseases like diarrhea, cholera, jaundice, etc. इसी तरह से mosquitoes भी बहुत dangerous हैं. You see, they spread diseases like malaria and dengue. ये जो mosquito होता है, it bites an infected person को bite करेगा, and जब वही mosquito किसी healthy person को bite करेगा, तो germs को उस healthy person की body में भी transfer कर देगा. Malaria is spread by female anopheles and dengue is spread by Aedes mosquito. These are very important to learn. Exam में कई बार पूछा जाता है कि name the disease causing pathogen for malaria and dengue. So for malaria, we have female Anopheles mosquito, and for dengue, we have Aedes mosquito. Second is blood-sucking wingless insects, जैसे कि head lice, bed bug, dog flea, cat flea. ये सभी, इनको हम fleas बोलते हैं. ठीक है, ये क्या हैं? Blood-sucking wingless insects. ठीक है, जो स्पेशल इंसेक्ट हैं जिनमें विंग्स नहीं होते हैं, बट वो इंसेक्ट्स ही होते हैं. राइट. तो ये जो rodent fleas हैं, they can spread dangerous diseases like bubonic plague. So we must be very careful. We should just get rid of these kind of insects if they are present in our surroundings. Next is the stinging insects, काटने वाले. जैसे बी है, वैस्प है, ये हमें स्टिंग करते हैं, डंक मारते हैं. ठीक है, इनका पॉइजनस स्टिंग होता है जो इनकी बॉडी के बैक पे प्रेजेंट होता है. जैसे ही दे जस्ट पियर्स आवर बॉडी विद देयर स्टिंग, तो हमारी बॉडी में ये पॉइजनस स्टिंग चला जाता है, which causes pain and redness. It needs to be treated. Okay, so that was all about the harmful insects. Let's now talk about कि ये जो हार्मफुल इंसेक्ट हैं इनसे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं. वी शुड ऑलवेज गेट रिड ऑफ दीज. इट्स पॉसिबल फॉर अस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम दीज हार्मफुल इंसेक्ट्स. तो ये हम कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग सम नेचुरल एंड केमिकल मेथड्स. ओके, जैसे नेचुरल मेथड्स में देखिए क्या हो सकता है. जैसे ड्राइड नीम लीव्स कभी कभी मम्मी रख देती हैं,
या फिर नीम या केरोसिन ऑयल जो है वुडन फर्नीचर पे लगा देती हैं। क्लोथ्स में हम ड्राइड नीम लीव्स रखते हैं, वुडन फर्नीचर पे हम नीम या फिर केरोसिन ऑयल लगाते हैं। दीज आर सम नेचुरल मेथड्स जिसकी हेल्प से हम इन चीज़ों को इंसेक्ट से बचा सकते हैं। इसके साथ ही देर आर सम केमिकल्स कॉल्ड एज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, स्पेशल केमिकल्स होते हैं इंसेक्ट्स को किल करने वाले इंसेक्टिसाइड्स और पेस्ट्स को किल करने वाले पेस्टिसाइड्स। तो हार्मफुल इंसेक्ट्स और पेस्ट्स को किल करने के लिए हम इन केमिकल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स एंड अदर थिंग्स। ओके चिल्ड्रन। नाउ आई हैव सम स्पेशल नोट्स फॉर यू जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं आपके लिए। ठीक है, आपको एग्जाम में इनमें से काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट इज बी एंड टर्माइट्स। ये ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं और इनको हम क्या कहते हैं? सोशल इंसेक्ट्स। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर social insects, give examples. So you can say that the insects that live in well organized colonies are known as social insects. For example, bee and ant and termites. Then बीज जो कॉलोनी होती है, जो बी हाइव होता है, उसमें नियरली 50,000 टू 80,000 वर्कर बीज होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, उनका काम होता है नेक्टर को कलेक्ट करना। few hundred males called drones. Okay, but there is only one queen in the beehive. एक क्वीन होती है, कुछ few hundred males होते हैं जिनको ड्रोन्स बोलते हैं, और 50 to 80,000 वर्कर बीज होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, rearing or breeding of honey bees for honey collection is known as apiculture. Rearing of silkworm for silk is called as sericulture. Now there is a special perk for you. You see spider, सभी ने देखा होगा स्पाइडर मैन, सबको पता है। सो स्पाइडर इंसेक्ट जैसा दिखता है, ओके, बट इट्स नॉट एक्चुअली एन इंसेक्ट, ओके, बिकॉज इट हैज 8 legs. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था दैट ऑल द इंसेक्ट्स दे हैव 6 legs, दैट मीन्स 3 pairs, बट स्पाइडर के पास इट हैज 4 pairs, दैट मीन्स इट हैज 8 legs, और ये बाकी इंसेक्ट्स को खाता है। राइट, यू सी इट रिलीजेस अ लिक्विड, एक लिक्विड रिलीज करता है अपनी बॉडी से, जो कि एक फाइन थ्रेड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी हेल्प से इट वीव्स अ वेब। सो इट्स नॉट मच विजिबल टू द इंसेक्ट्स। वेब जो होता है बहुत इजीली दिखाई नहीं देता है सभी इंसेक्ट्स को। तो वो क्या कर, वो बेचारे उनमें फंस जाते हैं, एंड देन व्हेन दे आर ट्रैप्ड they get eaten by the spiders. Okay, so that was all about the special notes, right children? With these special notes, I want to thank you for all for watching this video. Just stay connected with me. Keep watching Science Plus TV. Subscribe अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। You can send me your queries in the comments section. अगर आपको किसी और टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपना टॉपिक लिख के मुझे भेज सकते हैं, which I will be helping you out with. Okay, that also free of cost. इस ट्यूशन की कोई कॉस्ट नहीं है चिल्ड्रन। Okay, so you can just connect with me. Okay, so take care everyone, see you.